land, the term land is an exhaustive term. रवि सर लाइन पे लिखवा रहा हूं, 2 लाइनें छोड़ के लिखिएगा. is an exhaustive term which includes everything which is beneath the earth, or something above the earth. For example, mines, minerals, water, beneath the earth is land. Beneath the earth is land. Similarly, soil, water and marshes. Soil, water and marshes. 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 Above the surface is land. And all this includes the term immovable property. Full stop. Paragraph change. Benefit arising out of land. Benefit arising out of land. The term benefit arising out of land basically means profit appender. Basically means a profit appender. Benefit arising out of land is basically known as profit appender. Which is a immovable property. Thus, where an individual generates any profit from immovable property, then it will be considered as benefit arising out of land. रवि जी अभी आवाज आ रही है प्लीज? रवि जी आवाज आ रही है? Benefit arising out of land. For example, a right to fishery. For example, right to fishery
comma, right to have interest on mortgage, right to have an interest on mortgage, comma, right to hold, right to hold, heart, H-A-A-T, heart, H-A-A-T, heart, heart, you know na, heart, heart माने local बाजार, no issue, no issue, heart, मेला और ferry, heart, मेला, right to hold, heart, मेला or ferry is immovable property, है ना? Right to receive, right to receive rents is also an immovable property. Right to receive a rent is also an immovable property. ठीक. Next, things attached to earth. लिखिए. Things attached to earth. Thing attached to earth. Things attached to earth. To earth become part of became part of earth, became part of earth, and hence called immovable property. As per full stop, as per section 3 of Transfer of Property Act, as per section 3 of Transfer of Property Act, just hold on. ठीक है. As per section 3 of Transfer of Property Act, the term attached to earth basically means first A point लिखना. A things rooted except standing timber, growing crop and grass. Except standing timber, growing crop and grass. Second, B. The things embedded. B. The things embedded in earth. In cases of
In cases of wall and buildings. Cases of wall and building. Third. And third. Anything attached. Anything attached. Anything attached to what is embedded. Anything attached to what is embedded in earth for permanent benefit, for permanent beneficial enjoyment, for permanent beneficial enjoyment. Beneficial enjoyment. Full stop. Paragraph change. It is the last category. It is the last category. It is the last category which it is the last category which needs a detailed explanation. Detailed explanation. As it relates to, as it relates to, as it relates to something, it relates to something which is movable, which is movable. However, after getting attached, however, after getting attached, however, after getting attached to what is embedded, to what is embedded, it's change its character. It's change its character and become and become and become immovable. It becomes immovable. For example, bricks lying, for example, bricks lying one upon each other, for example, bricks lying one upon each other in a yard is is movable property, is movable property. However, if bricks, if same bricks, however, if same bricks are attached with wall, attached with wall, it will become immovable. Full stop. Paragraph change. The question, the question whether the question, paragraph change करके लिखना. The question whether the particular property, whether the particular property has obtained, whether the particular property has obtained the character of, has obtained the character of immovable property, immovable property is mixed question of law, is a mixed question of law and facts. And the test will be,
and the test will be first point लिखिएगा 1 2 3. The test will be first the mode of attachment and consequences of its detachment. ठीक है, इसी पॉइंट को लिखते हैं, मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट को ही लिखवा रहा हूँ. ठीक है, लिखिए. The first test to determine the nature of a property, is to find, is to see whether the property is attached due to its sheer weight, SHEER, sheer weight, or it is attached by some external aid, like construction, or it is fixed into the ground. Through some nut and bolts. And thereafter it has to be seen how easily the property can be removed. That is, whether it cause any damage, or not. To the property which it is attached. If it can be removed easily, without damage, it is movable property. And if cannot moved, and if it cannot be removed easily, then it can be termed as immovable property. Take second point.
intention of attachment. Intention of attachment. The second test, in order to determine whether the property attached, in order to determine whether the property attached is movable or immovable. Is the intention that is if the property is attached, with the intention that 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 it will be enjoyed permanently, or for a long period of time, then it will be considered as immovable property. ठीक है, चलिए बस ये दो काफी है। ठीक है, तीसरा वो है किसके साथ अटैच है, तो हमको पता होना चाहिए थिंग्स एम्बेडेड के साथ अटैच होना चाहिए ना, तो इट शुड बी अटैच विद थिंग्स एम्बेडेड। थर्ड अगर है ना, बाय whom इट इज अटैच, हमें ये भी देखना होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, हमको पता ही है थिंग्स एम्बेडेड के साथ अटैच होना चाहिए। किसी नॉन एम्बेडेड थिंग के साथ अगर अटैच है तो ऑब्वियस है वो खुद ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो थिंग्स अटैच भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की, शायद मैंने कुछ लिखवा भी दिए थे, ठीक है, बट आप कुछ लिख लीजिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा एग्जांपल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, एग्जाम में आ सकते हैं तो उसमें याद करने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। हेरिडिटरी अलाउंसेस, हेरिडिटरी अलाउंसेस, हेरिडिटरी अलाउंसेस, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडली my right, second point, my right to collect lack of tree, lack lack of tree, we know what is lack of tree, लकड़ियां जो बीनते हैं गांव में जाके, है ना, तो लकड़ियां बीनने का अधिकार जो है इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, my right to collect the lack of tree ना, लकड़ियां बीनते हैं ना, गड्ढे गल्लड़ जो बनते हैं वो, ठीक है। राइट ऑफ अ पंडित to receive funerals, right of pandit, this is different thing, yeah, pandit to receive funerals, price, right of a pandit to receive a funeral price is an immovable property, याद रखना immovable property है। held in Sukhlal versus Vishambar, Allahabad High Court, Sukhlal versus Vishambar, Allahabad High Court। चलिए
let us move into the another part. ठीक है, तो we have done immovable property, we have done movable property. क्लियर है सबको? डिक्टेशन कंप्लीट हो गया. इज इट क्लियर सबको? लेट अस गो विद द टर्म. तो हमने प्रॉपर्टी टर्म को समझ लिया, व्हाट इज प्रॉपर्टी. हमने इमूवेबल समझ लिया और हमने मूवेबल समझ लिया. व्हाट इज नॉट इमूवेबल इज मूवेबल, है ना, इसलिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमने मूवेबल भी पढ़ लिया. तो जो चीज इमूवेबल नहीं है, राइट टू वर्शिप, यस यस यस, ठीक है, राइट टू वर्शिप इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमने समझ लिया, इमूवेबल हमने समझ लिया, मूवेबल हमने समझ लिया. अब हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो हमारा टीपी बेसिकली आज स्टार्ट होगा. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म. ये जो टर्म है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको समझने की कोशिश करते हैं. टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो टर्म है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये कहाँ डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 में ये टर्म डिफाइन है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 में है. तो लेट अस गो एंड रीड द बेयर एक्ट एंड फाइंड आउट कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. चलिए, सेक्शन 5 सबने निकाल लिया? सबका हो गया? सबने ढूंढ लिया? प्लीज, ऑल पीपल डन? ज्योति मिल गया सेक्शन 5? ठीक है, सेक्शन 5 को देखते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड in the following section. Transfer of property means an act by which living persons, समझना. तो सबसे पहला तो ये बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी is an act of living person. An act of living person. An act of living persons. What do you mean by act of living person? What do you mean by living person? That is, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना, ट्रांसफर ऑफ टीपीए के अंदर जो ट्रांसफर होगा ना, दैट इज डन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा. That will be only between two living person. When I say what do you mean by the term living person, the term living person अगर आप देखेंगे तो term living person को सेक्शन 5 ही डिफाइन करता है. सेक्शन 5 का सेकंड पैराग्राफ देखिएगा. टर्म लिविंग पर्सन को डिफाइन किया गया है और क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग पर्सन. बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिविंग पर्सन. देखिए, बोलते हैं लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, body of individual whether corporated or not. ठीक है, बट नथिंग है इन कंटेंट, वो समझिए, उस चीज का मतलब नहीं है. क्या कहने वाले लिविंग पर्सन बेसिकली, देखिए लिविंग पर्सन जनरली नेचुरल पर्सन, हम जो होते हैं नेचुरल बीइंग जिसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, है ना. और कंपनी बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन.
juristic person, that is person created by law, person created by law. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है अगर टीपीए में ट्रांसफर हो रहा है तो दो इंडिविजुअल होने चाहिए. ए कैन ट्रांसफर टू बी. ए शुड बी अ लिविंग पर्सन, बी शुड बी अ लिविंग पर्सन. अब वो कहता है लिविंग पर्सन कौन हो सकता है? नेचुरल पर्सन हो सकता है, नेचुरल पर्सन, और इट कैन बी अ juristic person, juristic person. सिमिलरली बी कौन हो सकता है? नेचुरल हो सकता है, ये juristic हो सकता है. बेसिकली व्हाट सेक्शन 5 इज सेइंग कि अगर टीपीए के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो ए का या तो ह्यूमन बीइंग होना इंपॉर्टेंट है, या तो ए ह्यूमन बीइंग होगा, या फिर ए कौन होगा? कोई कॉर्पोरेट होगा, या कोई फर्म होगी, या कोई एसोसिएशन होगी. और ये किसको प्रॉपर्टी देगा? ये सेल, ये ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा किसी बी को. और ये बी कौन हो सकता है? दिस बी कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, और इट कैन बी अ कॉर्पोरेट, एसोसिएशन और अ फर्म. इस तरीके का जो ट्रांसफर है ए बी को कर सकता है, बी ए को कर सकता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन. दिस इज नोन एज इंटर वीवो ट्रांसफर. इट मस्ट बी बिटवीन टू लिविंग पर्सन. जो ट्रांसफर होना चाहिए वो दो जिंदा लोगों के बीच होना चाहिए. तो लेट इट बी एग्जांपल. एक एग्जांपल देता हूं. ए मेक अ ट्रांसफर. ए इज अ कोर्ट. कोर्ट make a transfer by decree to B human being. तो ए ने क्या किया? एक ट्रांसफर कर दिया बी के फेवर में जो ह्यूमन बीइंग है. बताइए, विल इट बी गवर्न बाय ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट? विल इट बी गवर्न बाय टीपीए? विल इट बी गवर्न बाय टीपीए? क्या इस पर टीपीए लगेगा? बताइएगा, हाँ या ना. विल टीपीए अप्लाई और नॉट? Will TP apply or not? Court is not an association. Court is not an association. Court is not a corporate. Court is not a juristic person. Court is not a juristic person. Please, ठीक है? Not governed by TPA. Similarly, एक example, A ने property transfer करी है. A is a human being. Transfer property to B. Transfer property to God. Let it be God. लक्ष्मी जी को ट्रांसफर कर दी उसने. लक्ष्मी, गॉड. बताइए, will it be governed by transfer property act? Will it be governed by transfer property act? Will it be governed by transfer property? Answer is no. Not governed by TPA. Why? Because God is not a living person. God is not a living person. समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज अ ट्रांसफर. ये दोनों ही ट्रांसफर है. इट्स अ ट्रांसफर. It's a transfer, but not governed by ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 कहता है इन द फॉलोइंग सेक्शंस. दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है दैट इज अ ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन. जब तक दो इंडिविजुअल के बीच में ट्रांसफर नहीं होगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. बहुत एग्जांपल है. ए मेक अ विल.
make a will in favor of B. He is a human being. It is a human being. ये भी human being है. बताइए, will it be governed by transfer of property act? This is a transfer, no doubt. It is a transfer of property. Question is this: will it be governed by transfer of property act? Answer the yes or no. Why? Yes. Why? No. Yes. Why? विल पे कब से पर्सनल लॉ लगने लगा? विल पे कभी पर्सनल लॉ नहीं लगता. किसने बोला पर्सनल लॉ? किसने बोला विल इज नॉट गवर्न बाय टीपीए? वही तो क्वेश्चन पूछना, व्हाई नॉट गवर्न बाय टीपीए, यही तो सवाल है. वेरी गुड. फ्यूचर ट्रांसफर्स आर अलाउड बेटा उदिता. फ्यूचर ट्रांसफर्स आर अलाउड. काजल, तुम्हारा कहने का मतलब है अलाउ हो जाएगा. इट इज वैलिड ट्रांसफर, है ना? प्रियंका, वैलिड और नॉट वैलिड ट्रांसफर मतलब इट्स वेरी गुड. सर समझ के देखिएगा. विल इट इज नॉट इट इज अ ट्रांसफर बट नॉट अंडर टीपीए, नॉट गवर्न बाय टीपीए. व्हाई? बिकॉज ए इज अ लिविंग. ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी को जब जाएगी, ए विल डाई देन ओनली प्रॉपर्टी विल गो टू बी. दिस इज समथिंग बिटवीन वन लिविंग एंड वन डेड. वो ये बोलता ना, मेरे मरने के बाद इसको संपत्ति जाएगी. कब जाएगी? मेरे मरने के बाद. यानी कि ट्रांजैक्शन कब होगा? जब एक बंदा डेड हो जाएगा. विल कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द एग्जीक्यूटर. विल जो है वो फोर्स में आती है ओनली आफ्टर केम इन फोर्स. विल केम इन फोर्स only after the death of the executor, and hence what? Not governed by TPA, and hence not applicable of TPA. Why? Because for the purpose of TPA, the transfer property must be between the two living person. दो जीवित व्यक्तियों के बीच की बात है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया. पूजा का एग्जांपल लेते हैं. पूजा मेक अ गिफ्ट डीड. मेक अ गिफ्ट deed in favor of Zia Judicious. बताइए. She make a gift deed in favor of Zia Judicious. It is a transfer, no doubt. Will it govern by TP or not? Will it be governed by TP or not? Will it be governed by now? Why? Yes. Why? Will it be governed by? Answer is it will be governed by TPA. Why? Why not? ठीक है. Because देखिए ना, natural person to juristic person, both are living. Juristic person is a living person. Zia Judicial is a juristic person. Corporated or not? It is a बात corporated or not, उससे फर्क नहीं पड़ता है. But it is what? It is a firm. It is an association, or it is a trust. It can be anything. है ना? But it can be a company. Exactly, it can be a company. ठीक है. What is this? This is what? Both are living person, and hence it is a valid, governed by TPA. Governed by TPA. So this is a transfer governed by TPA. बताइए. कितना को समझ में आया प्लीज? तो एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन कितना को समझ में आया? तो वर्ड एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन समझ में आया कि अगर टीपीए के अंदर ट्रांसफर को फॉल कराना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर है वो एन
ट्रांसफरी है वो, both the transfer and transferee must be living person. Then only the act of transfer of property under TPA will be governed. फिर वो एक लिविंग, एक ह्यूमन बीइंग, एक जुरिस्टिक हो चलेगा, दोनों जुरिस्टिक हो चलेगा, दोनों लिविंग पर्सन हो चलेगा, नो इशू, बट एक लिविंग और एक नॉन लिविंग नहीं चलेगा. बोथ मस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग? गॉड हो गया है ना नॉन लिविंग, विल एग्जांपल है उसका, सक्सेशन उसका एग्जांपल है, ये सब इससे गवर्न नहीं होता. क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्लीज क्लियर हुआ तो हम आगे मूव ऑन करते हैं. वैदे बेटा क्लियर? आस्था बेटा क्लियर हो ना? उदिता, रेशमा, रुखसार, है ना, क्लियर और नॉट? मैथ्यू क्लियर और नॉट? मैरी क्रिसमस, बिलेटेड क्रिसमस मैथ्यू, आप तो आज आ गए, वेरी गुड. आई विल गिव यू अ शॉर्ट, जल्दी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? आई विल लीव यू एट 7:30 फॉर श्योर. अरे 7:30 जल्दी छुट्टी, सब हंस रहे. 7:30 से जल्दी छुट्टी यार, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, वैदे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस हो गया, वेरी गुड. आस्था बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आस्था, आयुषी, ज्योति टाक क्लियर है नहीं है? प्रीति बेटा क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं अगेन. इन द फॉलोइंग सेक्शंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी. Conveys property, that is, they both, it is an act of conveying. It is an act of conveying. What do you mean by convey of property? ये इम्पोर्टेंट है. बोलते हैं ट्रांसफर जो तो लोग कर रहे हैं, जो लिविंग इंडिविजुअल कर रहे हैं, they must convey the property, conveys the property. So it's a conveying of property. When I say conveying of the property, the word conveying of the property basically means transfer of a title, or I say it's a creation of a new title. Creation of a title. That means in order to convert a transfer into TPA, transfer of property under TPA, transfer must always create a new title in the transferee. What do you mean by creation of new title in the transferee? That is convey माने ट्रांसफर करना, convey माने to create a new title, है ना? तो समझ के देखना, create a new title को समझने की कोशिश करते. A ने सेल किया, सेल टू बी. बताइए, जिस दिन A ने सेल किया B को, इसका मतलब क्या हुआ? A ने B को सेल किया, इसका मतलब क्या हुआ? That is now B is the owner. B became owner. A is no more owner. यही तो है इसका मतलब. When I say A ने B को transfer, does it mean this or not? What is this? This is known as convey. तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें B का कोई इंटरेस्ट पहले नहीं था, ठीक है, now what has happened? Some new interest has been created. This is known as transfer of property. For example, देखिए, for example, एग्जाम्पल का देखते हैं. एग्जाम्पल,
ज्वाइंट हिंदू फैमिली ले लेते हैं ना. वन एग्जांपल इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली. ज्वाइंट हिंदू फैमिली. partition between co-partners. Partition between co-partner, बताइए. Will it be governed by Transfer of Property Act? बताइए. Will it be governed by partition between co-partner? बताइए. Will it be governed by Transfer of Property Act? कोई भी पार्टीशन है, वैसे मैंने एक ज्वाइंट फैमिली हिंदू लिया, कोई भी पार्टीशन, विल इट बी गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? बताइए जल्दी, यस और नो का जवाब दे दीजिए बस, बाकी मुझे नहीं चाहिए, कुछ क्लियरेंस नहीं चाहिए. यस, वेरी गुड, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट. पूजा, वेरी गुड. वैदेही, व्हाई यू शुड आंसर दैट. क्यों? आप गिव द रीजन. यस इज ऑल राइट. नो जिसने बोला है वो आंसर दे दे, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दे दे. देखिए, समझ के देखिए, आप मुझे आंसर बताएंगे. दिस इज द ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी. ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जिसके अंदर कौन कौन है? एक्स, वाई, जेड और ओ. चलो ओ एक्स वाई जेड चार मान लेते हैं. ये प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड ओ की है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी की, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी. अब हुआ क्या, इनमें लड़ाई हो गई, नाउ दे का पार्टीशन. पार्टीशन ये और ये हो गई, एक्स की है, ये वाई की है, जेड की है, ये ओ की है. बताइए. नहीं बताइए, मुझे इतना बता दीजिए कि इस पार्टीशन से पहले इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन था? इस पार्टीशन से पहले इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन था? एक्स वाई जेड ओ, हाँ या ना? और अब कौन है? एक्स वाई जेड ओ. फर्क कितना हुआ? पहले ये नहीं पता था कौन से हिस्से का कौन पार्टिसिपेशन है, और अब ये पता चल गया कि कौन से साइड में किसका शेयर है. तो पार्टीशन इज नेवर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ, इट इज not a case of transfer under ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सिंपल सी बात है. जनरली पार्टीशन तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होता है, टीपीए क्या वैसे भी ट्रांसफर नहीं माना था. व्हाई? इट इज नॉट क्रिएट न्यू टाइटल. इट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू टाइटल. that this is not conveying of the title. जब तक conveying नहीं होगी, ठीक है, जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक कन्वे नहीं किया जाएगा, तब तक क्या होगा? इट इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ. फॉर एग्जांपल, वन एक एग्जांपल और लेते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल पिक करते हैं. एग्जांपल इज दिस. ए ने क्या किया? अलाउ बी टू स्टे एट हिज होम. बताइए, will it be a transfer under TPA? बताइए, will it be transfer under TPA? ए ने बी को बोला तुम मेरे घर पे रह लो, कोई बात नहीं. अरे बोल देते हैं ना, मैं मेरे रूम पे बहुत सारे दोस्त आके रह लेते हैं. विल इट अमाउंट टू अ ट्रांसफर? क्या ये ट्रांसफर अंडर टीपीए कवर होगा? आंसर इज, व्हाई इज इट अ ट्रांसफर? आंसर इज नो ट्रांसफर. व्हाई? आई हैव नॉट ट्रांसफर एनीथिंग, बिकॉज नो टाइटल, नो इंटरेस्ट इज ट्रांसफर. टाइटल तो बहुत बड़ी चीज है ना आयुषी. इंटरेस्ट इज ट्रांसफर, नो इंटरेस्ट ट्रांसफर थोड़ी किया है कुछ. यस, ठीक है, कोई ट्रांसफर है. पर फॉर एग्जांपल इसी के अंदर ए गेव हाउस टू बी ऑन रेंट. अब क्या है?
Will it be a transfer under Transfer Property Act? Will it be a transfer under Transfer Property Act? क्या ये ट्रांसफर होगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर? आंसर इज यस. Why? Because it is a transfer of interest. Which interest? That is right to enjoy. That is, इससे पहले, इस ट्रांजेक्शन से पहले A was having a right to enjoy. Right to enjoy is a property or not? Right to enjoy is a property or not? प्रॉपर्टी जब पढ़ाया तो मैंने बताया था आपको, प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल पार्ट. तो इट इज द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वो भी है. और अब इसको ये किसको ट्रांसफर कर दिया? अब आफ्टर द ट्रांसफर क्या हो गया? नाउ व्हाट? आफ्टर ट्रांसफर व्हाट? वी हैव राइट टू एंजॉय. राइट टू एंजॉय किसके पास चला गया? बी के पास. दिस इज नोन एज कन्वेइंग ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस इज नोन एज कन्वे ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? कन्वे कर दिया. तो कन्वे मतलब जब भी आप एक टाइटल यानी कि एक इंटरेस्ट जो आपके अंदर है, वो इंटरेस्ट आप किसी और के अंदर क्रिएट कर रहे हैं जो उसके अंदर नहीं था. तो वर्ड कन्वेइंग मींस द ट्रांसफरी ऑब्टेन्ड सम न्यू इंटरेस्ट इनटू द प्रॉपर्टी. तो कन्वे का मतलब समझ में आया? कन्वे मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट. जब तक न्यू इंटरेस्ट नहीं बनेगा प्रॉपर्टी के अंदर, तब तक नहीं. कितना समझ में आया प्लीज? भटनागर साहब, तो बेटा, वैदेही, सागर, रुखसार, रेशमा, राघव, प्रियंका, प्रीति, क्लियर है? पूजा, नावेद, काजल, ज्योति, मैथ्यू, देव, बलजीत, आयुषी, आस्था, सबको क्लियर है? यस, वेरी गुड. ज्योति क्लियर हुआ नहीं हुआ? ज्योति, इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस, वेरी गुड. चलिए, तो दो टर्मोलॉजी समझ में आया आपको. ट्रांसफर प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन. कन्वे प्रॉपर्टी. ठीक है, आगे लिखते हैं. थर्ड पॉइंट पकड़ते हैं इसका. थर्ड पॉइंट को पकड़ते हैं. किसको टीपी अच्छे से आता है? इससे पहले मतलब मुझसे पहले तो किसी ने कॉलेज में टीपीए था, वेरी गुड सब्जेक्ट, काफी लोग अच्छे पढ़ते हैं. प्रियंका, शौकीन, तेरा कैसा था टीपीए? अच्छा था. काजल, तेरा कैसा था टीपीए? ओला गोला टोला, तेरा कैसा था? वैदेही, योर टीपीए गुड. आज तो तेरा टीपीए गुड, नॉट गुड. सागर, ये भी पढ़ने वाला बच्चा है. गुड, सही सही, ठीक है. चलो चलो, जिसका टीपीए गुड था उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है नहीं मिल रहा? मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये रीजन ये होता है पूछने का. आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट यू कि मैं तुम्हारे को चेक करने वाला हूँ कि तुम्हें आता नहीं आता. आई वांट मीन टू से कि जो तुमको आता है उसमें कुछ ऐड ऑन हो रहा है या तुमको लग रहा है भाई ये तो सब आता है. ठीक है, ठीक है, ऐड होना चाहिए. ठीक है. एक्चुअली कितने लोगों को लगता था टीपीए जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? इट इज नॉट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, है ना. इट इज वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअलिटी. अच्छा, सागर ने मुझसे ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है. टीपीए में कितने लोग जाने वाले हैं? हाउ मेनी पीपल आर गोइंग इन टीपीए? हाथ खड़ा करना जरा. हाउ मेनी पीपल आर लीविंग मी इन टीपीए? पता तो चले. आज सबको लिस्ट निकालना पड़ेगा, सबको बाहर फेंकना पड़ेगा उठा के, है ना. वेरी गुड. काजल, ओ दीता इज गोइंग. ओ पूजा, ओ माय गॉड, पूजा जा रही है. इट्स अ पार्टी, इट्स अ पार्टी, इट्स अ पार्टी. ठीक है. सारे लोग मेरे से पार्टी ले लो. पूजा इज, आई एम सो हैप्पी. सर इसने बहुत परेशान किया मुझे, मेरी जिंदगी नर्क करती है इसने. ठीक है. नहीं, इट्स नॉट, शी इज वेरी गुड.
वेरी 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 गुड. उदिता इज गोइंग. ओके, काजल इज गोइंग. सागर तुम नहीं जा रहे अभी तक? सागर यू आल्सो गोइंग, है ना? आयुषी त्यागी इज आल्सो गोइंग. कितने झूठ बोल रही है आयुषी और सागर, छुपा के बैठे हुए. ठीक है, यू आर लीविंग दिस बैच. ठीक है, तुम लोगों ने टीपी में तो ज्वाइन किया था काजल के साथ. काजल जा रही है और उसका नहीं. अच्छा, एक को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करना है. आई एम गोइंग इन कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा ठीक है, आयुषी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है. वेरी गुड. टीपी के बाद कॉन्ट्रैक्ट हमारा सब्जेक्ट है. टीपी के बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है. बलजीत, टीपी के बाद क्या आता है? बलजीत को बताओगा. पूजा, टीपी के बाद कॉन्ट्रैक्ट है. अच्छा ओके ओके, फिर सही है. ठीक है, चलो चलो कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में उड़ा देंगे तुम्हें, कोई बात नहीं. चलिए, जो बच्चे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में उड़ा दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं. लिख, आगे पढ़ते हैं, रीड करते हैं. In the following sections, transfer of property means an act by which living person convey property. यहां तो समझ में आ गया. In present or in future. In present or in future. What do you mean by the term in present or in future? Why they're using the word in present or in future? Does it means that you can transfer? Does it mean? Does it mean you can transfer both present and future property? Does it mean? Does it mean? Achha, Naveed is also going. Very good. बताइए नावेद, अभी तो तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे से रिवाइज होने से बचे, राइट? तो प्लीज जो सब्जेक्ट रिवाइज होने से, ठीक है, वो करना है. प्लस व्हेन आई से यू आर लीविंग द बैच, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लीविंग द कोचिंग. दिस कोचिंग इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. ठीक है, आपको हमेशा आके रखना है. ठीक है, और टच में रहना है. देखिए, द वर्ड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, the word present and future under section 5 is not talking about, it's not related to property. Rather, it is to be read with the word convey. Read with convey. The convey. That means what basically my voice clear, please? My voice clear? My voice actually I lost my Wi-Fi, तो मेरा लाइट चला गया. तो अभी मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया. ठीक है, कोई नहीं. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता बिकॉज मैंने लाइट से कनेक्ट किया. बट मैं एक बार इस टर्मोलॉजी को समझा दूं, यहीं से पिक करेंगे. राइट, जो वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर है, दिस वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर इज टू बी रीड विद द वर्ड कन्वे. कन्वे जो वर्ड है उसके साथ रीड करना है. व्हेन आई से कन्वे के साथ रीड करना है, बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट द interest which we create, it can be present or future. The interest in the, but the property must be present. बट आप उस प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, वो प्रेजेंट और फ्यूचर रेट में हो सकता है. जो प्रेजेंट इंटरेस्ट होता है, जो प्रेजेंट इंटरेस्ट कहते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट.
अंडर सेक्शन 19 ऑफ टीपीए, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। Whereas जो फ्यूचर इंटरेस्ट है that is known as contingent interest under section 24 of the Transfer of Property Act. तो जब उन्होंने बोला कि कन्वे प्रॉपर्टी प्रेजेंट और फ्यूचर, कन्वे प्रॉपर्टी प्रेजेंट और फ्यूचर, तो बेसिकली दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन द वर्ड property, rather they are focusing upon the word convey. So basically they mean to say convey present, to convey property at present or convey property for future, but they are not saying related to property, they are talking about the word convey. So for example, I can transfer property like this ki I sell my property to B, I sell my property to Pooja. This is what मैंने अगर बोला कि आई सेल माई प्रॉपर्टी टू पूजा, मैं अपनी जमीन पूजा को बेचता हूं, मैंने ऐसा लिख के दे दिया, दिस इज नोन एज प्रेजेंट कन्वेइंग, दैट इज आई एम क्रिएटिंग अ वेस्टेड इंटरेस्ट टुडे, आज क्रिएट कर रहा हूं, प्रेजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं, यानी कि आज से वो ऑनर हो गई, तो आज ही मैंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया उसको, माय जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो मैंने आज ही ट्रांसफर कर दिया, this is known as conveying present interest. Similarly, या फिर creating a interest in present, आज ही प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट, या फिर मैंने क्या बोला that this property will be of Pooja forever when she become 18 year, ठीक है, कि प्रॉपर्टी किसकी होगी, XYZ की हो जाएगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। That means what? प्रॉपर्टी तो मैंने आज ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी मैंने आज ट्रांसफर कर दी है, बट उसके अंदर जो रियल ओनरशिप है वो कब तक के लिए मैंने उसको लेफ्ट आउट कर दिया है, या कब तक के लिए उसको डिले कर दिया है, 18 ईयर तक के लिए, यानी कि 18 ईयर तक वो उसको क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट, दिस इज आई हैव क्रिएटेड अ आई कैन से कंटिंजेंट इंटरेस्ट, और आई दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ वेस्टेड इंटरेस्ट ओनली, बट इसको कंटिंजेंट का एग्जांपल समझ सकते हैं, या फिर ऐसा मान लेते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट, दिस प्रॉपर्टी विल बी ऑफ पूजा इफ द शिप विजिट, ये बेस्ट एग्जांपल है कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की हो जाएगी अगर शिप आ गया 12 तारीख को, दैट मींस अगर 12 तारीख को शिप नहीं आया तो प्रॉपर्टी किसकी होगी, नहीं होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन सम हैपनिंग, इंटरेस्ट इज फ्यूचर कंटिंजेंट, अगर वो आ गया 12 तारीख को तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, वरना वो फ्यूचर इंटरेस्ट ही रहेगा, ठीक है, हम समझेंगे फ्यूचर और प्रेजेंट इंटरेस्ट को हम वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के कांसेप्ट से रिलेट करेंगे सेक्शन 19 और 24 को, और द वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कितना को समझ आया प्लीज, वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर, कल यहीं से पिक करते हैं, टुमारो क्लास टाइमिंग इज सेम, बट लिमिटेशन का क्लास बच रहा है, तो जो लिमिटेशन वाले बच्चे हैं वो 5:30 बजे ज्वाइन करें, लिंक विल बी सेम, टीपीए वाला लिंक रहेगा, ठीक है, एसआरए वाला लिंक नहीं यूज करना है, यही लिंक पे यूज करना है, इसी लिंक को यूज करना है, टीपीए वाले बच्चे 5:30 बजे, वो सॉरी लिमिटेशन का जो रह गया था, जितना पोर्शन जिन लोगों का लिमिटेशन रह गया वो 5:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे, और अदर पीपल विल ज्वाइन एट 6 ओनली, राइट, टीपीए का 6 रहेगा। बात क्लियर हो गई है प्लीज? आस्था बेटा क्लियर है, वैधि बेटा क्लियर है आपको, क्योंकि क्लास का इशू है, तो वो वैधि एंड क्लास तो नहीं चल रही ना वैधि तुम्हारी, यू डोंट हैव क्लास राइट, 5 तक तो कंप्लीट हो जाती है सारी क्लासेस, राइट, ठीक है, सबको क्लियर हो गया प्लीज? चलिए चलिए ठीक है, कैच यू टुमारो, ठीक है। लेक्चर कितने बजे तक होता है वैधि बेटा, कितने बजे तक लेक्चर रहता है? 3:30 तक रहता है ना आपका, तो सैटरडे को 3:30 4:30 तक ही तो रहता है मैक्सिमम। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी गेस्ट लेक्चर, चलिए ठीक है, गेस्ट लेक्चर होगा तो देखा जाएगा, ठीक है, बट होगा नहीं मोस्ट ऑफली, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। अच्छा एक बार रिपीट कर देता हूँ, और मैं वापस एक बार मैसेज ग्रुप पे डाल देना, कल की जो क्लास है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट,
जिन लोगों का लिमिटेशन एक्ट का थोड़ा सा पोर्शन बचा है हमारा पीटी वाला, वो 5:30 बजे लॉग इन करेंगे सेम लिंक पे। वेयर एज जो टीपीए वाले बच्चे हैं वो अपना नॉर्मल टाइम दैट इज 6 पे लॉग इन करेंगे सेम लिंक पे। 6 से वी हैव अ टीपीए क्लास। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।